الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فاركع. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد احکام جمعہ سے متعلق ما ثبت بالسنہ قرآن و سنہ کی روشنی میں جو احکام شرعی ہیں ان کے اوپر مختصر گزارشات جاری ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا ہے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آغاز کیا گیا ہے. حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، مسند امام احمد میں اور مستدرک علی الصحیحین یعنی حاکم میں، اور امام نسائی اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتب سنن میں ذکر کی ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن. اذ جاء رجل، ایک آدمی آیا، فقال له النبی، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلیتا، ارے بھائی صاحب جو تم لیٹ آئے ہو تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں ایسے ہی بیٹھ گئے؟ قال لا، وہ کہنے لگا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، میں تو ڈائریکٹ آیا ہوں اور ڈائریکٹ آ کے خطبے میں بیٹھ گیا ہوں. قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا عمل درست نہیں، قم، آپ کھڑے ہو جاؤ، خطبہ بعد میں سننا، پہلے کھڑے ہو. فرکع، اور آپ 2 رکعتیں پڑھیے، پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھیے. یہاں سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ اگر امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ براجمان ہو جائیں یا کھڑے ہو جائیں اور ہم لیٹ پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں.
इमाम साहब के मिंबर पे बराजमान होने से पहले अगर हम आ जाए तो हम 2 रकात और 4 रकात जितना मुमकिन हो पढ़े, लेकिन जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पे बराजमान हो तो ये जो एक आम बात मशहूर है कि अब सुन्नतें बाद में पढ़ लें या ना पढ़ें, ये बात गलत है। कम से कम 2 रकातें पढ़े उसके बाद बैठे, उसके बगैर बैठना मुनासिब नहीं है, इस बात का लिहाज किया जाए। उसके बाद जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुर रहमान अन इब्नती हारिसत इब्न नअमान क़ालत हफ़िज़तु वल क़ाफ वल क़ुरआन अल मजीद मिन फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अलल मिंबर यौमुल जुमआ। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह और इमाम नसाई रहमहुल्लाह अपनी अपनी किताबों में जिक्र करते हैं, जनाब हारिसा इब्न नअमान की बेटी इस हदीस को बयान करने वाली हैं। वो कहती हैं मैंने क़ाफ वल क़ुरआन अल मजीद, ये सूरतुल क़ाफ याद की है, मिन फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जबान से निकले हुए अल्फाज को याद कर करके, वहुवा अलल मिंबर, इस हाल में कि अल्लाह के नबी मिंबर पे बराजमान होते थे जुम्मे के दिन, और जुम्मे के दिन अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलाम ये सूरतुल क़ाफ की तिलावत किया करते थे। लिहाजा मसनून अमल यह है कि सूरतुल क़ाफ को तिलावत किया जाए जुम्मे के दिन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का इन्हिमाक यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इतने इन्हिमाक के साथ खुतबे को सुनते थे कि 3 रुकू पर मुश्तमिल जो ये सूरत है इसको उन्होंने खुतबे में सुन सुन के याद कर लिया। ये अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की दिल जमई और ज़ौक़ का आलम है, और हमारा ज़ौक़ क्या है इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब अपने गिरेबान में खुद झांक सकते हैं और खुद पहचान सकते हैं कि हम में किस चीज की कमी है, लिहाजा हमें उस चीज को दूर करने की हाजत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जनाब हुसैन इब्न अब्दुर रहमान, वो कहते हैं रायतु बिश्र इब्न मरवान यौमुल जुमआ, सही मुस्लिम और सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, कहते हैं कि मैंने बिश्र इब्न मरवान को देखा जुम्मे के दिन, यरफाउ यदैहि, वो अपने दोनों हाथ उठाए खुतबा दे रहे थे, गोया के अंदाजे गुफ्तगू में अभी दायां कभी बायां कभी दोनों हाथ उठा के लोगों को खिताब कर रहे थे। तो फ़क़ाल उम्मारा इब्न रुवैबा, जब ये मामला देखा उम्मारा बिन रुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो उन्होंने खिताब किया बिशर बिन मरवान को और कहा क़ब्बहल्लाहु हातैनिल यदैन, अल्लाह ताला खुतबे में इन दोनों हाथों का जो उठना है इनके लिए बहुत बुरा करे। लक़द रायतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यज़ीदु अला हाज़ा व अशारा अबू अवाना, अबू अवाना ने एक उंगली से इशारा किया और कहा कि इससे ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलाम खुतबे में हाथों को नहीं उठाया करते थे। लिहाजा ये जो खुतबा इकराम का अंदाज मुबारक है कि कभी एक हाथ कभी दोनों हाथ, कभी पूरी पूरी जोशीली तकारीर, अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलाम इशारे के लिए तो अपनी उंगली और हाथ को उठाते थे, इसके सिवाय अपने दोनों हाथों को नहीं उठाया करते थे और अपने दोनों हाथों से इशारा भी नहीं किया करते थे। लिहाजा मसनून अमल किया है कि एक हाथ को उठाया जाए और अगर कुछ मकसूद हो तो इशारा किया जाए, वगरना इसके अंदर एहतियात होनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सही मुस्लिम के अंदर और सुनन नसाई के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है, वो फरमाते हैं मा ज़ादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ा व अशारा बिइस्बाइहि सब्बाबा, उन्होंने ये शहादत की उंगली उठाई और कहा कि इस उंगली के सिवा अल्लाह के नबी कुछ और हाथ को नहीं उठाते थे और इस उंगली के सिवा और उंगलियों को नहीं उठाते थे। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलाम का जो मुबारक अमल मिला वो सीधे हाथ को उठाना और उसमें दाएं उंगली और सब्बाह यानी शहादत की उंगली से इशारा करना तो मिला, इसके सिवा अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलाम का मुबारक अमल और खुतबे में साबित नहीं। इसके बाद मसला यह है कि सुनन नसाई और सुनन तिर्मिज़ी के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है, जनाब औस इब्न औस अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, वो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिमुस्सलाम से रिवायत फरमा रहे हैं, मन गस्सला वग़्तसला सुम्मा इब्तकरा वग़दा वदना मिनल इमामी व अनस्वता सुम्मा लम यल्गु काना लहु बिकुल्लि खुतवा कअजरि सनतिन सियामुहा व क़ियामुहा। औस इब्न औस सक़फ़ी फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जो शख्स अपने जिस्म और कपड़ों को धो डाले और गुस्ल करे और अव्वल वक्त मस्जिद में जाए और खुतबा शुरू होने को पाए
फिर इमाम के बहुत करीब बैठ जाए, लगफ बातों से भी इज्तिनाब करे, उसके लिए हर कदम के एवज में 1 साल के सियाम और 1 साल के क़याम का सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुकर्रर कर दिया जाता है। अब हमारे यहाँ मसला यह है कि हम खुतबे में तो आ जाते हैं, मस्जिद में भी पहले आ जाते हैं, मगर दौरान खुतबा हम टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, या हम वॉइस नोट्स करते हैं, या हम व्हाट्सएप से खेलते रहते हैं, या हम मीडिया एक्टिविटी करते रहते हैं, या हम सोशल मीडिया पे सोशलिस्ट बन जाते हैं और हम अपने आप को उस पे एक्टिविज्म के अंदर दाखिल कर लेते हैं कि हम उसके अंदर दाखिल होते हैं। कभी कोई मैसेज कर रहा है, कोई कॉल सुन रहा है, कोई आगे टेक्स्ट भेज रहा है, कोई वॉइस नोट भेज रहा है, कोई स्नैप कर रहा है, कोई तस्वीर खींच रहा है, कोई उसको चेक कर रहा है, कोई अपनी मेमोरी देख रहा है। ये सारे काम जो हम दौरान खुतबा कर रहे हैं, ये सारे के सारे काम करना लगवियात में दाखिल है, इससे जुम्मे का सवाब निकल जाता है। काश का हम इसकी एहतियात करें। कभी भी कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई हरज नहीं है, बाद में कर ले, पहले कर ले, लेकिन जिस मकसद के लिए मस्जिद में आए हैं कि हमें ढेरों ढेर सवाब मिले, उसके अंदर हम एहतियात नहीं कर रहे। तो जब हम एहतियात नहीं कर रहे तो हमारा सवाब अनजाने में हमसे निकल रहा है। ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे, ये आदत है कि मैसेज चेक कर ली, ये आदत है निकाल के मेमोरी देख ली, ये आदत है निकाल के हिस्ट्री चेक कर ली, ये आदत है कि निकाल के देखा कि किस किस की कॉलें लगी हुई, फोन साइलेंट पे था, जरा मैं चेक कर लूं। अब हमें ये ख्याल नहीं रह रहा कि हम मस्जिद में हैं और हमारा ये अमल लगव है। लगव के होने की दलील क्या है? हर चीज की एक दलील होती है। एक आदमी सवाल कर सकता है कि मैं कोई बेहुदा काम नहीं कर रहा, मैं गलत काम नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं आ गई, तो ये लगव कैसे है? लगव इस सूरत में है कि कुतुब अरबा के अंदर सही रिवायत मौजूद है कि जब जुम्मे के खुतबे के दरमियान कोई शख्स गुफ्तगू कर रहा हो और दूसरा उसको कहे अनसित, मेरे भाई आप खामोश होकर बैठ जाइए, फकत लगव, इसने भी गलत काम किया। आप किसी को नहीं रोकेंगे, आप किसी से कुछ बात नहीं करेंगे। वहां भी तो नेकी का काम था, उसको समझाया जा रहा है भाई साहब बैठ जाओ, बाद में बात कर लेना, या डायरेक्ट इमाम साहब से बात कर लेना, ये आपस में बात नहीं करो। तो फरमाया कि आपने भी एक लगव काम किया। तो ये जो सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिवेट करना है, ये अपने आप को मोबाइल एसेसरीज से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अपने आप को मुसलसल एसोसिएट करना है जुम्मे के अंदर, ये सारा का सारा लगव काम है। इससे सवाब निकल जाता और इससे जो है वो इंसान सवाब से महरूम हो जाता है। लिहाजा इसके अंदर भी हम सबको एहतियात करने की जरूरत है ताकि हमारा सवाब इंशाअल्लाह जारी व सारी रहे। इसके बाद मसला यह है कि सुनन इब्ने माजा में और बैहकी में और सुनन नसाई में और इब्ने खुज़ैमा में और सहीहुल इमाम इब्ने हिब्बान में और मुस्तदरक अल-सहीहैन में इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने भी अपनी सुनन में जिक्र किया, जिसको इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने मौकूफ दर्जे के साथ बयान किया। वो रिवायत ये है कि जनाब अबू ज़ाहिरिया जनाब अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कहते हैं कुन्तु जालिसन इला जानिबिही यौमल जुमआ फ़क़ाल जा रजुलन यतख़त्ता रिक़ाब अन्नास यौमल जुमआ व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबुन नास फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजलिस फ़क़द आज़ैता। एक आदमी आया इस हाल में के खुतबा जुम्मा चल रहा है, अब्दुल्लाह बिन बुसर के पहलू में कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था। कौन कहते हैं? इमाम ज़ाहिरिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन बुसर जो मशहूर सहाबी हैं, मैं उनके पहलू में जुम्मे के दिन बैठा हुआ था। तो फरमाने लगे कि एक शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में जुम्मे के दिन लोगों की गर्दनों को फैलाता हुआ आगे आया। इसका मकसद क्या था? कि मैं आगे आ जाऊं। इसका मकसद यह था कि मैं सवाब ज्यादा कमा लूं। इसका मकसद भी नेक था कि मैं इमाम साहब के करीब बैठूं ताकि मुझे ज्यादा समझ में आए। गलत काम के लिए नहीं आया था, नेकी के लिए आया, खैर के लिए आया, अच्छाई के लिए आया। अब वो इमाम साहब के करीब आया मगर आने वाला तो लेट हो गया, तो उसने लोगों को फैलांग के आगे आने की जिद्दोजहद की, किसी के कंधे को फांदा, किसी की गर्दन को फांदा और फैलांग के वो आगे पहुंच गया। जब वो आगे पहुंचा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को फरमाया इजलिस, भाई साहब बैठ जाओ, फैलांग के आगे ना आओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। फकत आज़ैता, आपने हमें बड़ी अजियत पहुंचाई है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, अब ये अमल ना करें।
तो अगर किसी आदमी को मस्जिद में आगे आना है तो वो थोड़ी सी पहले आने की कोशिश फरमा ले, और अगर लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, जहां जगह मिली है वहां बैठ जाए, इंशाअल्लाह रहमान आपकी नियत के हिसाब से आपको सवाब मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर आगे की जगह पे आप बैठने का एहतमाम फरमाते हैं और आप लेट हो गए और वो जगह चली गई तो आप सबकी गर्दनों को फैलांग कर आए, ये बात अच्छी नहीं है। जहां गुंजाइश और जहां जगह मिल जाए वहां पे बड़ा जमान हो जाए, वहां पे तशरीफ रखें और आगे आने की जहमत लोगों की गर्दनों को फैलांग कर ना करें, ये बात सही नहीं है। इसी तरह एक आदमी है, उसने दरख्वास्त देनी है दुआ की, या उसने कोई दुआ करानी है, या उसने गायबाना जनाजा करना है, या उसने कोई भी बात अपना XYZ पेश करना है, कोई भी मसला, अब वो बेचारा हो गया लेट। अब लेट होने की सूरत में वो पूरी मस्जिद के लोगों की गर्दनें फैलांग रहा है, इसके सर के ऊपर से उसके कंधे के ऊपर से आने की जिद्दोजहद कर रहा है, मसला उसका जेन्युइन है, मगर ये जो तरीका है जो वो बेचारा मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि जाहिर है जानबूझ के किसी को शौक थोड़ी है जो ये काम करेगा, इससे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया है। तो इसका हल ये है कि कोई दरख्वास्त की पर्ची हो या कोई मुत्तला करना हो या कोई भी मसला हो तो थोड़ी सी जहमत फरमा के पहले तशरीफ ले आए और वो बात जो है पहले मुंतकिल कर दें, ताकि किसी को फैलाने की जरूरत ही ना आए और किसी को तंग करने की जरूरत ना आए। ये मस्जिदों की मेहराबों में जो ये दरवाजा लगाया जाता है, इस दरवाजे का मकसूद ही यही है कि खतीब साहब ने आना है अपने वक्त पर। अब जब वो अपने वक्त पे आएंगे तो नमाजी बैठे हैं तो बसा औकात उनको फैलांग के आना पड़ता है, लोगों की गर्दनों को फांद के आना पड़ता है। इसी वजह से ये इज्तिहाद किया गया कि मिंबर में एक दरवाजा हो, इमाम साहब वहीं से आए और वहीं से बाहर तशरीफ ले जाएं, ताकि लोगों को फैलांगने की जरूरत ना पेश आए, लोगों के ऊपर से गुजरने की जरूरत ना पेश आए। ये इसी गर्ज और इसी गायत के तहत दरवाजा लगाया जाता है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर फरमाई थी, उसमें मिंबर में कोई दरवाजा नहीं था और उसमें मेहराब में कोई दरवाजा नहीं था। अगरचे वो मेहराब हमारी मेहराबों की तरह तो अगरचे नहीं थी, लेकिन बाकायदा एक सूरत तो थी और उसके अंदर कोई दरवाजा आने और जाने का दाखिल नहीं किया गया था। बस ये इज्तिहाद इसीलिए है ताकि लोगों की गर्दनों को फैलाने की जरूरत ना पेश आए। अब जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, सही मुस्लिम और सही बुखारी में और सुनने बैहकी के अंदर मौजूद है। फरमाया जनाब अबू हुरैरा ने अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ाल अर्रजुलु लिसाहिबिही यौमल जुमुआ वल इमामु यख्तुबु अंसित फ़क़त लगा। एक आदमी ने अपने भाई को जुम्मे के खुतबे में कहा, भाई साहब जरा खामोश हो जाइए, आप खामोशी से बैठिए। तो इसका ये कहना भी जो है लगफ काम है। तो बहुत से हज़रात ऐसे हैं कि खुतबे के दरमियान वो तिलावत करते हैं, बहुत से हज़रात ऐसे हैं खुतबे के दरमियान वो अपने मोबाइल पे या टैबलेट पे या वैसे ही ज़बानी अपने अस्कार को करते हैं या अपनी तिलावतों को करते हैं। तो जुम्मे का खुतबा कान लगाकर गौर से सुनने के लिए है। इस वक्त अस्कार और इस वक्त दुआएं पढ़ना मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये वक्त सुनने का है और पढ़ने का वक्त खुतबे के अलावा का है। तो पहले पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए। एक आदमी पढ़ रहा है तो वो खैर का ही काम कर रहा है ना, इंशाअल्लाह रहमान अच्छा ही काम कर रहा है, इंशाअल्लाह रहमान कोई गलत नहीं कर रहा है। लेकिन वो तरीका चूंकि मशरू नहीं है, वो तरीका चूंकि सुन्नत रसूल नहीं है, चूंकि उस तरीके में दीन की मुमासिलत नहीं है, लिहाजा इससे इज्तिनाब करने की जरूरत है और सुन्नत के मुताबिक ही अपने अमल को इंशाअल्लाह डालने की जरूरत है, ताकि इंसान कमा हक़्क़हु शरीयत की पाबंदी करने वाला बन जाए। इसके बाद फरमाया जनाब अबू माशर जियाद इब्न कुलैब इब्राहिम से वो अलक़मा से वो क़रसा अद-दब्बी से रिवायत करते हुए कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, वकाना मिनल क़ुर्राइल अव्वलीन अन सलमान क़ाल क़ाल लि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन रजुलिन यततहहरु यौमल जुमुआ कमा उमिरा सुम्मा यख़रुजु मिन बैतिही हत्ता यातियल जुमुआ फयुनसिता हत्ता यक़ज़िया सलातहु इल्ला काना कफ़ारतन लिमा काना क़ब्लहु मिनल जुमुआ। मुस्तदरक हाकिम और सुनन नसाई के अंदर भी सही बुखारी के साथ ये रिवायत मौजूद है। फरमाया कि एक आदमी इस तरह जुम्मे में आया कि जैसे तहारत का हुक्म है ऐसे उसने तहारत हासिल कर ली, उसके बाद अपने घर से निकला, अपनी जगह से निकला, यहाँ तक कि जुम्मे में हाजिर हुआ और बहुत खामोशी के साथ, इन्हिमाक के साथ कान लगाकर खुतबा सुनने वाला बना रहा, यहाँ तक कि उसने नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली। तो अब ये जो जुम्मा है ये अगले जुम्मे तक इसके गुनाहों का कफ़ारा बनेगा।
शर्त क्या है? सुन्नत के मुताबिक गुस्ल, सुन्नत के मुताबिक एहतमाम, सुन्नत के मुताबिक कान लगाकर बैठना और सुनना, और फिर शरीयत की मुताबिकत का इल्तिजाम करना। तो इस सूरत में ये जुम्मा अगले जुम्मे तक गुनाहों का इंशाअल्लाह कफ्फारा बन जाए। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बांट रहा है, जन्नत बांट रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मगर हम अपनी अपनी कोताहियों में लगे हुए। मैं अपनी कोताहियों में लगा हुआ हूं, आप अपनी कोताहियों में लगे हुए। हम उस सवाब को अचीव नहीं कर पा रहे जो शरिया ने हमारे लिए मुकर्रर किया। लिहाजा उस सवाब को हासिल करने की कोशिश कीजिए जिस तरह शरीयत ने मुकर्रर किया है, ताकि इंशाअल्लाह रहमान सवाब दर सवाब हासिल हो और इंसान अल्लाह के यहाँ कामयाब और कामरान हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सुनन इब्ने माजा में, सुनन नबी दाऊद और सुनन नसाई के अंदर रिवायत मौजूद है। रिवायत है साबित अल बुनानी की। वो रिवायत करते हैं अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से। वो कहते हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु अलल मिंबर फयअरिज़ु लहु रजुल फयुकल्लिमुहु फयक़ूमु मअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता यक़ज़िया हाजतहु सुम्मा यतक़द्दमु इला मुसल्ला फयुसल्ली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। खुतबा देने के बाद जैसे ही नीचे उतरे, एक मुक्तदी ने कहा जी मुझे जरा आपसे एक काम की बात करनी है और कान में बात करनी है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कान लगा दिया उसकी तरफ के भाई बोल क्या काम है, बता दे क्या काम है। उसके साथ सारी गुफ्तगू सुनी, उसका मसला हल फरमाया और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इमामत के लिए मिंबर पे खड़े हो गए और आपने नमाज का एहतमाम फरमाया। यहां से जो मसला निकला वो ये कि अगर इमाम साहब मिंबर से उतरने के बाद किसी से कोई गुफ्तगू कर ले या कोई भी इजाफी काम कर ले, या जैसे मेरी एक आदत है, जानबूझ के तो एहतमाम नहीं है लेकिन एक आदत है कि मेरे हलक में दर्द होने लगता है, तो मैं जुम्मे का खुतबा देने के बाद नमाज से पहले पानी पीता हूं। अब ये जो पानी पीना है इस वक्त में, क्या ये मशरू है? क्या ये दीन में साबित है? ये दीन में साबित नहीं है। अगर बिला जरूरत हो तो ये भी मकरूह अमल है कि बिला किराहियत किया जा रहा है। हाँ जरूरत है तो भाई बैठ जाए, जरूरत है तो पी ले, जरूरत है तो अपनी जरूरत और हाजत को पूरा कर ले, फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह बिला वजह लोगों से बातें करना ये तो गलत है। अगर कोई मसला किसी का है या कोई बात कहने के लिए आया है तो उसकी बात सुन ले इन्हिमाक के साथ और उसको झिड़के नहीं। ये मसला इसलिए पेश आया कि जमाने से एक बात चली आ रही है कि इमाम साहब खुतबा देने के बाद जब नीचे उतरे और कोई साइल अपनी जरूरत की बात कह दे तो इमाम साहब को गुस्सा आ जाता है कि बैठ जाओ, बाद में आना। ये बात गलत है, ऐसा नहीं। कोई बेचारा बात लेकर आया है, उसकी बात सुन लो, 2 मिनट में मुख्तसर सुन ले, बाकी बात जो है वो बाद में कर ली जाए, लेकिन उसकी बात सुन ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको झिड़का नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको डांटा नहीं, अल्लाह के नबी ने उसकी बात सुन ली और फिर नमाज का एहतमाम फरमा दिया। लिहाजा इमाम के हुकूक में यह हक दाखिल है कि वो अपने मुक्तदियान की अगर कोई बात सुनना चाहे तो सुन ले और बाद में सलात का एहतमाम करे, इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं। लेकिन साइल का वो सवाल भी जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसको बताए बगैर उसकी जिंदगी और मौत का मसला हल ना हो रहा हो, या उसके लिए इंतहाई कबाहत का मसला हो कि उससे रुका नहीं जा रहा हो, तो वो अपनी बात पहले कह दे। अगर उसकी कोई ऐसी जरूरत है, कोई ऐसा मसला है जो बाद सलाब भी पूछा जा सकता है तो बाद सलाब पूछ ले, और अगर पहले भी पूछ ले तो कोई मुमानिअत नहीं है, उसको डांटा नहीं जाएगा, उसकी बात सुन ली जाएगी और फिर नमाज का एहतमाम किया जाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन नसाई की कुबरा में और सुनन इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है कि नमाज जुम्मा की पढ़ते कितने थी। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सलातुल जुमा रकातान व सलातुल फित्री रकातान व सलातुल अदाही रकातान व सलातुल सफरी रकातान तमामुन गैर कसरिन अला लिसानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जुम्मे की फर्ज रकातें 2 हैं, नमाज फितर यानी ईदैन की जो नमाज है चाहे अज़ाही हो या ईद उल फितर हो 2-2 रकातें हैं, इशराक की 2-2 रकातें हैं, सफर की भी 2 रकातें हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जबान से यही कुछ मुकम्मल तौर पे फरमाया गया है। लिहाजा जुम्मे के फराइज 2 रकातें हैं, जुम्मे के लिए 2 रकातों को फर्ज का एहतमाम होना चाहिए। उससे पहले की सुन्नतें उसके बाद की सुन्नतें हैं वो फर्ज में दाखिल नहीं है। लिहाजा जुम्मे के जो फराइज हैं वो 2 रकातें हैं। ये बात इसलिए कही गई है
کہ ایک سوال اور اعتراض ہے کہ اصل میں جی جمعہ 4 رکعتیں تھا، اسلام آنے کے بعد تخفیف ہو گئی اور تخفیف کے بعد جو ہے اس کو آدھا کر دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ ایک طبقہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے پاس وقت بھی قلیل ہے ورنہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہمارے غائب امام صاحب تشریف نہیں لاتے اس وقت تک ہم سب لوگ کیا ہیں، حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے ہم قصر نماز پڑھیں گے کیونکہ ہم تو خوف کے عالم میں ہیں، ایک تو سفر ہے اوپر سے خوف ہے، تو اس سفر اور خوف کی وجہ سے ہم 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ہی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کے 2 رکعت فرض مقرر کیے، کبھی 4 رکعت مقرر نہیں کیے۔ 4 رکعت ظہر کے فرض ہیں، جمعے کے 2 ہی رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں نہیں ہیں، لہذا اس اعتراض کو دور کر دیا گیا اور شریعت نے اس بات کو واضح طور پہ ذکر کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سنت کے مطابق اپنے طریق کو صحابہ تک منتقل کرتے تھے تاکہ لوگ شریعت کی مطابقت میں اپنے آپ کو پالیں اور شریعت کے مطابقت میں عمل کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فيقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين قلت يا أبا هريرة لقد قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما قال سمعت حبي ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہما۔ اما بعد، صحیح مسلم اور ابن ماجہ اور سنن ابی داود کی ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جناب عبداللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ جب مدینہ کے گورنر بن گئے تو جمعے کی نماز میں جناب ابو ہریرہ نے سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کر دی۔ تو جب انہوں نے یہ تلاوت کی تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے یہ 2 سورتیں پڑھی، جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں یہی 2 پڑھا کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا کہ بھائی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کو جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے، ہم اسی لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں صحیحین کی روایتوں کے ساتھ موجود ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جمعے کے دن سورۃ الاعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی اور سورۃ الغاشیہ یعنی هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ بہت سے حضرات کو ایک وہم ہو جاتا ہے، وہ وہم یہ ہے کیا مولوی صاحب کو بس یہ 2 ہی صورت آتی ہیں، اس کے علاوہ اور قرآن نہیں آتا کیا؟ ہمیشہ یہی پڑھتے؟ بھائی یہ پڑھیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا، اس کے علاوہ پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی مگر سنت کا جو اضافی ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، تو کیوں نہ ہم اضافی ثواب کو کما لیں۔ اس لیے اعلی اور غاشیہ یا جمعہ اور منافقون کو پڑھنا مسنون ہے اور اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اگر اضافی نیکیاں مل رہی ہیں تو بھائی اس کو کما لو، اس کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے ان صورتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ایک اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک رواج چل گیا ہے علماء کرام میں، ایک آدمی رخصت کو قبول کرے وہ بات اور ہے، ایک آدمی رخصت کو عادت بنا لے وہ بات اور ہے۔ اب وہ کیا کیا جاتا ہے، سورۃ الاعلی کی چند آیتیں، سورۃ الغاشیہ کی چند آیتیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ امام صاحب ہے، طبیعت بگڑ گئی، کوئی اور وجہ ہے، انسان ہے، 100 معاملات ہیں، اگر اس نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن عادت بنا کے 3 آیتیں یہاں سے پڑھی، 3 آیتیں وہاں سے پڑھی اور چل بھائی نماز ختم، یہ ذرا مشروع نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو پوری سورت پڑھنے کا اہتمام کیا،
ताहम तबीयत की खराबी की बिना पर या किसी भी शरई उक़दे या नुक्ते की बिना पर अगर मुख्तसर कर लिया जाए या कुछ और भी पढ़ लिया जाए तो नमाज इंशाअल्लाह हो जाएगी, नमाज में कोई कमी नहीं होगी। मगर जो सुन्नत का इल्तिजाम है वो नहीं हो सकेगा। देखिए, हम जो ये इतने बड़े बड़े खुतबे देते हैं, सीधी और दो टोक बात यह है कि हमारा काम तो पढ़ने पढ़ाने का है, और हम जब हदीस की किताब सही बुखारी या सही मुस्लिम पढ़ा रहे होते हैं तो हम जिस तरह वो बात कहेंगे हम पाबंद हैं कि आप भी वो बात इसी तरह कहें, उसके अंदर हेर फेर ना करें। ये इतने लंबे जो उम्मत में खुतबे हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बरखिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये अमल है कि खुतबा छोटा और नमाज बड़ी। अब हमसे नमाज तो लंबी पढ़ी जाती नहीं, तो हम ये हीला कर लें कि जी नमाज तो बड़ी होती नहीं लिहाजा खुतबा ही बड़ा कर लें, ये बात भी जरा मुनासिब नहीं है। खुतबा छोटा, कम बातें, वजनी बातें, बाअमल बातें, जिस पर 100% अमल हो उन बातों को करना चाहिए खुतबे में ताकि उसका असर हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक खैरुल कलामी क़ल्ल व दल्ल, बेहतरीन कलाम वो होता है जो अल्फाज के एतबार से तो महदूदा हो लेकिन वजन के एतबार से ऐसा मुदल्लल हो कि ऐसा बाअमल जखीरा हो कि जिसके ऊपर अमल करने वाले का अमल सुधर जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का खुतबा इतना छोटा और नमाज बड़ी होती थी, लिहाजा सुन्नत तो यही है। आप भी दुआ करें अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सुन्नत के मुताबिक अपना खुतबा कर लें और सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह अपनी सलात कर लें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की नमाज बड़ी और खुतबा छोटा होता था। बहरहाल हम चूंकि मुअव्विलीन में नहीं है और हमारे मजहब और मसलक में तावील की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे हम अकीदे में तावील के कायल नहीं वैसे ही हम हदीस में भी किसी तावील के कायल नहीं। तो ये तावीलात हैं जो मुख्तलिफ लोग करते हैं, हम उस बहस में जाना ही नहीं चाहते क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही इंशाअल्लाह आपके और हमारे लिए नमूना हिदायत है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सूरतों का जुमे में एहतमाम करते थे, तो जो इनका एहतमाम करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के मुताबिक उसको सवाब मिल जाएगा। अब एक आदमी आया जुम्मे के लिए, उस बेचारे को नमाज की 1 रकात मिली या 1 रकात का कुछ हिस्सा मिला, उसका जुम्मा हो जाएगा या नहीं होगा? लोगों के नजदीक अगर खुतबा चला जाए तो नमाज नहीं होती, वो कहते हैं कि आप कहीं और जाओ वरना अपनी ज़ोहर पढ़ लो, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं जुम्मे की, उसको छोड़ो भाई अब नमाज नहीं होगी। ये बात गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? सुनन इब्न माजा और दार क़ुतनी के अंदर और बैहक़ी के अंदर और नसाई के अंदर मौजूद है, मन अदरक मिनस सलाती रकातन फ़क़द अदरक। आपको अगर नमाज की 1 रकात भी मिल गई ना, या आपको रुकू भी मिल गया या कुछ हिस्सा भी मिल गया तो आपको पूरी नमाज मिल गई। आप उस नमाज को कंटिन्यू करेंगे, आप उस नमाज को बहैसियत मजबूत पढ़ेंगे, यानी आप उसमें शामिल हो जाएंगे। इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद जो आपकी नमाज रह गई है आप उसे पूरा करेंगे। लिहाजा अगर आप आए और नमाज शुरू हो गई, अव्वलन ये रुख्सत है, इसको आदत नहीं बनाना चाहिए कि जी हम तो जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, हमें थोड़ी खुतबा सुनना है, खुतबा हमारे लिए नहीं है, हमने सिर्फ नमाज पढ़नी है। ये सोच भी गैर मुनासिब है, खिलाफ शरा है, इसको भी बदलने की जरूरत है। और दूसरा कि जब आपको पता चल जाए कि आप आए और नमाज खड़ी हो गई तो आप नमाज में शामिल हो जाएं, जिस हालत में इमाम साहब थे उनके साथ उसी को कंटिन्यू करें और फिर बाद में अपनी जो रकातें रह गई हैं उसे पूरा कर लें। क्योंकि एक बात अपने पल्ले बांध लें, अच्छे तरीके से पल्ले बांध लें, जिंदगी मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। ये जो हम ये करते हैं ना कि हम बाद में पढ़ लेंगे, अबे भाई बाद में जिंदा रहोगे तो पढ़ोगे ना, अगर जिंदगी नहीं वफा नहीं की तो कब पढ़ोगे? लिहाजा जो मौका इबादत का मिल रहा है उसको फौरन कर लो, इससे पहले कि वो मौका छिन जाए, इससे पहले कि अगला सांस ही ना मिले। लिहाजा जो मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह उसको गनीमत जानिए और उसको अपनी इबादत में लगा लीजिए ताकि सुन्नत के मुताबिक अमल हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे, मा अदरकतुम फस्वल्लु व मा फातकुम फअतिम्मु, जो तुम्हें मिल जाए वो नमाज में पढ़ लो और जो तुमसे निकल जाए उसको बाद में पूरा कर लो। तो जो हदीस है उसके मुताबिक अगर आप आए और जुम्मा शुरू हो गया तो आपको चाहिए कि आप उसको कंटिन्यू करें और आप उसको पूरा करें। फिर सही मुस्लिम और सुनन नसाई और सुनन तिरमिजी के अंदर और बैहक़ी और इमाम अहमद ने अपनी हदीस की किताबों में जमा किया, इज़ा सल्ला अहदुकुमुल जुमअ फलयुसल्ली बादहा अर्बान। जब एक आदमी ने नमाज जुम्मा पढ़ ली, अब उसके बाद वो कितनी सुन्नतें पढ़े? 4 रकातें पढ़े। सुन्नत के मुताबिक वो 4 रकातें पढ़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में जुम्मे के बाद सुन्नतें पढ़ा करते थे तो वो 4 रकातें पढ़ते थे और घर आके पढ़ते थे तो 2 रकातें पढ़ते थे। बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको जमा कर दिया है
और वो कहते हैं 4 रकातें मस्जिद में पढ़ ले और घर में आए फिर 2 रकातें भी पढ़ ले। और बहुत से मुहद्दिसीन ने कहा नहीं, अगर मस्जिद में पढ़े तो 4 रकातें पढ़ ले और अगर घर में आए तो सिर्फ 2 रकातें पढ़ ले। बहरहाल यही मुनासिब और औला है कि मस्जिद में बाद सलातुल जुमुआ सुन्नतें पढ़ी जाएंगी कितनी? 4 रकातें। और अगर घर में आके पढ़ेंगे तो कितनी? 2 रकातें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और सहीहैन की रिवायतों से साबित है, लिहाजा इसका एहतमाम होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही मुख्तसर सा मसला रह गया है, चूंकि हमारा वक्त पूरा हो गया है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इसका आखिरी सिलसिला दूसरे मौजू के साथ इंशाअल्लाह अगले जुम्मा इसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ हमने सुना है और बयान किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए और जुम्मे की वो घड़ी जिसमें अल्लाह ताला सब दुआओं को सुन लेते हैं, अल्लाह ताला इसमें हमारी हाजतों को सुनकर हमारी इंशाअल्लाह मग़फ़िरत का ऐलान नसीब फरमाए। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीर। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर।